So in the previous classes we have learned the how the rays will behave in each of the lenses. Right or wrong? One thing I forgot to tell you. Do you know that why is a convex lens is a diverging lens? Converging lens. Have you ever thought of that? And why is it so that a concave lens is a converging lens? It is it is converging. It is diverging. And just the ulta, a concave mirror becomes the converging mirror, and a convex mirror becomes the converging mirror. Yes or no? Huh? Do you know why this happens? Do you have any idea? You don't? See, I'll tell you one thing. Suppose light ray has come and struck. This is light ray. This converging mirror will have a center of curvature, will have a focus. Think like that. Okay. This light ray should pass through focus. Anyway, but by following the law of reflection, we know that angle of incidence should be angle of reflection. Now when it will come and strike, it should go in such a way that angle of incidence should be equal to angle of reflection. An angle of incidence is the angle between incident ray and the normal, right or wrong? An angle of reflection is the angle between normal and reflected ray. So these two, angle of incidence and angle of reflection, should be equal to each other. Right or wrong? In the same way, here also same should be followed. For that we should draw normal. And when we draw normal, the normal on any curved surface is towards the center, right or wrong? If you draw the tangent at that point, if you have to draw a normal at any point, you have to draw tangent. Tangent के ऊपर normal draw करने से center से जाएगा. मतलब this should be a normal. This should be a normal. Now the angle of incidence that you have obtained must be equals to the angle of reflection. And as because the curvature is very uniform curvature. मतलब एक circle से एक curvature ऐसे लिया. I don't know. As the curvature is very uniform curvature, so what will happen? यहाँ से खींचोगे normal तक, यहाँ से normal खींचोगे ऐसे होगा, यहाँ से normal खींचोगे ऐसे होगा. तो normal तो सब center of curvature में जाएगा, right or wrong? और जब इंसिडेंट रे गिरेगा, रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे जब इक्वल बनाएगा, सभी लाइट रेज फोकस से ही जाएगा बाय फॉलोइंग द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. इसीलिए एक कन्वेक्स जो मिरर है, एक कॉन्केव मिरर है, एक कॉन्केव जो मिरर है, ये कॉन्केव मिरर है, ये कन्वर्जिंग होता है इसी कारण से. समझ में आया बात? और एक कन्वेक्स मिरर कन्वर्जिंग क्यों होता है? एक कन्वेक्स मिरर कन्वर्जिंग क्यों होता है? अगर लाइट रे आके स्ट्राइक करे, राइट और रॉन्ग, तो यहां पे अगर तुमको एक ड्रॉ करना है, तो यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा. सोचो यहां पे एक पॉइंट है, फोकस होगा बाद में, वो मतलब मीट करने के बाद. तो तुम जो ये ड्रॉ करोगे, क्या बोलते हैं उसको, नॉर्मल ड्रॉ करोगे, वो ऐसा करोगे, ये नॉर्मल होगा. अब बात ये है कि इस नॉर्मल को बाहर की तरफ भी खींचो. यस और नो? सो बाहर की तरफ खींचो. अब ये आएगा तो ये थोड़ी इधर उधर अंदर की तरफ घुसेगा, मिरर के पीछे जाएगा, रिफ्लेक्ट होके जाएगा. और ऐसे रिफ्लेक्ट होगा ताकि ऐसा लगे देख के कि वो फोकस से बाहर निकल के जा रहा है, राइट और रॉन्ग? देख के ऐसा लगे कि वो फोकस से बाहर निकल के जा रहा है ऐसे. Are you getting my point? तो ये इंसिडेंट रे होगा और ये रिफ्लेक्टेड रे होगा. Is this clear to you? आया बात समझ में? तो यानी ये सब नॉर्मल मिटा दोगे तो देख के लगेगा कि कोई भी पैरेलल रे ऑफ लाइट आके ऐसे जा रहा है, आके ऐसे जा रहा है, आके ऐसे जा रहा है. Yes or no? Am I being able to make myself clear? Yes, sir. Is this clear to you?
इज दिस क्लियर टू यू? तो ये होता है डाइवर्जिंग। ये हो गया मिरर का रीजन। अब आते हैं लेंस के रीजन में। ये कॉन्वेक्स लेंस जो है, यहां पे ये कन्वर्जिंग क्यों है? कॉन्वेक्स लेंस इज कन्वर्जिंग। रुको, ट्रेन आ रहा है, मैं बंद कर देता हूं, नहीं तो ट्रेन का साउंड रिकॉर्ड हो जाता है। हाँ, तो अभी लेंस के बारे में बात करेंगे। लेंस में रिफ्लेक्शन, यहाँ पे जैसे रिफ्लेक्शन के लॉ से ये मैं समझा दिया, प्रूफ कर दिया। यहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं होता है, यहाँ पे रिफ्रैक्शन होता है ना मेरी बात? रिफ्रैक्शन हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि सोच ये एक कर्वेचर है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ है, सोच C1, या फिर हम लोग क्या लिखते हैं 2F1, है ना? या फिर किसी किसी बुक में कभी कभी ना इस तरफ 2F2 लिखा जाता है, F2 लिखा जाता है, और इसका जो होगा, इसका होगा 2F2 2F1, और ये होगा F1, है ना? सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस, ये तो पहले दिन ही समझा दिया था मैंने। और कहां से क्या रे कैसे जाता है वो भी मैंने समझा दिया। कॉन्वर्जिंग है मतलब इस साइड से लाइट आएगा तो इसमें मीट होगा, इस साइड से लाइट होगा तो इसमें मीट होगा। मैं इसी साइड से दिखाता हूं। सोच, लेंस को थोड़ा और अच्छे से ड्रॉ करता हूं। हाँ, सोचिए लेंस है, ठीक है? अब लाइट रे आया, स्ट्राइक किया, ये क्या है? कोई बोलेगा लेंस के ये जो काला दागी है इसको क्या बोल सकते हैं रिफ्रैक्शन के टर्म्स में? इंटरफेस, क्योंकि एयर है, अंदर ग्लास है, ग्लास का बना हुआ लेंस है, राइट और रॉन्ग? तो रिफ्रैक्शन होगा ना, तो मेरे को नॉर्मल चाहिए, राइट और रॉन्ग? अगर मेरे को नॉर्मल चाहिए तो यहाँ पे टेंजेंट खींचना चाहिए, और द नॉर्मल must be pointing towards the 2F1, yes or no? आ रहा है बात समझ में? This normal is such that it is pointing towards the 2F1, क्योंकि इस कर्वेचर का मैंने यहाँ पे जो सीखा है वही बात है। एक सर्कल का अगर सेंटर है तो किसी पॉइंट में परपेंडिकुलर तुमको ड्रॉ करना है, तो उस पॉइंट में टेंजेंट ड्रॉ करो और सीधा ऐसे कर दो तो ये परपेंडिकुलर बनेगा, yes or no? क्या बनेगा? परपेंडिकुलर बनेगा। क्लियर? ठीक उसी तरह ये 2F1 की तरफ डायरेक्टेड है और ये परपेंडिकुलर है। अब ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा, ऐसे थोड़ा बेंडिंग दिखाया है टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये सर नो? ऐसे टुवर्ड्स द नॉर्मल, सोचो ऐसे टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड किया क्योंकि टेंसर मीडियम में जा रहा है। अब ये दूसरा इंटरफेस है कि नहीं? ये क्या है? दूसरा इंटरफेस है। अब ये दूसरा इंटरफेस है तो यहाँ पे अगर मुझे को नॉर्मल ड्रॉ करना है तो ऐसे ड्रॉ करना होगा, राइट और रॉन्ग? ऐसे ड्रॉ करना होगा क्योंकि इस कर्वेचर का सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है तो इस तरफ डायरेक्टेड होना चाहिए। अब this must bend away from the normal because it is coming from denser medium to rarer medium, and it will come away from the normal and meet here. देखा? तो हर जगह में यही चीज होगा। अंदर का ये चीज इग्नोर करके मैंने लास्ट क्लास में सिखा दिया था कि यहाँ पे ऐसे कुछ 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 दागे खींच देना, ऐसे लाना और ऐसा कर देना, यही सिखाया था ना? लेकिन अंदर में इतना माजरा हो रहा है, इसीलिए this converging lens, convex lens is converging। यही चीज इस लेंस में देखो, ठीक है? इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो इस तरफ होगा 2F2 F2, और सोचो 2F1 F1। इस कर्वेचर का सेंटर ऑफ कर्वेचर ये होगा और इस कर्वेचर का सेंटर ऑफ कर्वेचर वो होगा। अच्छा,
लाइट रे आया, स्ट्राइक किया, ठीक है। अब तेरे को यहाँ पे नॉर्मल खींचना है, तो यहाँ पे टेंजेंट खींच, ये सर नो, नॉर्मल इस तरफ डायरेक्टेड होना चाहिए, ये सर नो, सॉरी इस तरफ ऐसे डायरेक्टेड होना चाहिए, ये नॉर्मल होना चाहिए। आया समझ में? अब ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होना चाहिए कि टुवर्ड्स द नॉर्मल? टुवर्ड्स द हाँ, एयर से ग्लास में जा रहा है तो ऐसे टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगा ऊपर की तरफ। अच्छा, ठीक है, हुआ टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुआ। अब यहाँ पे नॉर्मल खींचना है तो मैं ऐसे टेंजेंट खींचूंगा और नॉर्मल इस तरफ डायरेक्टेड होगा। अब बोल अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगा कि टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगा? हो गया अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड। आया मजा? देख रहा है लाइट किस तरफ जा रहा है? इसका मतलब इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे, बीच में ऐसे एक लाइन सोचेंगे, ऐसे आके ऐसे कर देंगे, डाइवर्जिंग लाइंस। आया रीजन समझ में आया? मजा आया? इंटरेस्टिंग है कि नहीं? आया समझ में? हाँ, गुड। अब देखो, ये जो समझाने के लिए है, बार बार जब रे डायग्राम करोगे तब थोड़ी ना अंदर में तुम इतना ड्रॉ करोगे? हाँ, जब ये का मिरर का रे डायग्राम कर रहे थे तब भी अंदर में इतना कुछ नहीं ड्रॉ कर रहे थे, है ना? अब हम लोग रे डायग्राम इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस करेंगे। हम लोग जब मिरर का पढ़ रहे थे ना, सीबीसी के लिए बता रहा हूं, तो रे डायग्राम इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस कर रहे थे, सॉरी कॉनकेव मिरर कर रहे थे, जब मिरर का कर रहे थे हम लोग बुक में रे डायग्राम इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस पढ़ते हैं, उतना डिटेल्स में कॉनकेव लेंस का नहीं पढ़ते। रे डायग्राम इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर पढ़ते हैं और उतना डिटेल्स में कॉन्वेक्स मिरर का नहीं पढ़ते। इसका रीजन है कि तुम अगर गौर से नोटिस करोगे तो कॉन्वेक्स लेंस अगर लिया जाए तो इसको जो सारे पोजीशंस होते हैं, इसके जो सारे पोजीशंस होते हैं वो सारे रियल पोजीशंस होते हैं। राइट और रॉन्ग? सारे क्या होते हैं? रियल पोजीशंस होते हैं। इसका रीजन ये है क्योंकि लाइट सच में आके बेंड करके फोकस से जाता है। इज दिस क्लियर टू यू? लेकिन अगर तुम कॉनकेव लोगे तो इसके रियल पोजीशंस नहीं मिलते। ऐसे बेंड होता है, तुम बैक की तरफ खींचते हो तो तुमको एक F2 मिलता है, मतलब अपियर कर रहा है जैसे इस लाइन से निकल के जा रहा है। मतलब ये कन्वर्जिंग मिरर है, कन्वर्जिंग लेंस है, सॉरी। तो लाइट रे बिहेव्स एज इफ ऑल द लाइट रेज हैव कम एंड कन्वर्ज्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। इसी वजह से देखना, जो लुकिंग सॉरी क्या होता है इसको, मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है उसमें कॉन्वेक्स लेंस होता है। मैग्नीफाइंग ग्लास से तुम सन्स के रेज को एक जगह में फोकस कर सकते हो। अब मैं जब छोटा था तो चींटी जला दिया करता था। हाँ, चींटी को एक yes I mean human, don't look at me like that. I can be human towards you also. तो जब मैं छोटा था तो उतना क्या ह्यूमैनिटी का समझ तो था नहीं। तो मेरे को देख के लगा रे, और मेरे ग्रैंडफादर के पास एक मैग्नीफाइंग ग्लास था, उससे वो क्या करते थे मेरे को पता नहीं था। अच्छा वाला हाई पावर का, और जितना हाई पावर का होगा ना उतना उसका फोकल लेंथ छोटा होता है।
याद रखना, आज ही पढ़ा दूंगा। पावर ऑफ लेंस इज इक्वल्स टू 1 बाई फोकल लेंथ। मतलब जितना हाई पावर का होगा मतलब फोकल लेंथ उसका छोटा होगा। हाई पावर का था, फोकल लेंथ पास था, ठीक है। अच्छा, यहां से क्वेश्चन मेरे को याद आया, इस डिस्कशन में आता हूं। फोकल लेंथ क्या होता है? इस यहां से ये जगह को फोकल लेंथ कहेंगे। लास्ट डे ये सब पढ़ाया था ना मैंने, हाँ? क्या एक लेंस का फोकल लेंथ फिक्स्ड है कि वैरी कर सकता है? क्यों? क्या एक फोकल लेंस का फोकल लेंथ फिक्स्ड है या वैरी कर सकता है? वैरी कर सकता है ना? क्यों? लेकिन इसका ऑब्वियस आंसर ऐसा लगता है कि फिक्स्ड ही होना चाहिए। फिक्स नहीं है, वैरी कर सकता है। क्यों? अबे गधो, अभी तो पढ़ा कि जब लेंस में घुस रहा है, कोई भी लेंस ले लो, चाहे कॉन्केव हो कॉन्वेक्स हो, कोई भी लेंस ले लो, यहाँ पे बेंडिंग हो रहा है, यहाँ पे बेंडिंग हो रहा है, फिर ऐसे आ रहा है ना। तो डिपेंड्स ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। If you take this glass and put it inside water, then the amount of bending will depend on refractive index of glass with respect to water. Both will be different refractive indices, and when both will be different refractive indices, then what will happen? Bending will be different. So focal length will be, maybe in this case it is meeting here, maybe inside water. The same lens will allow them to meet here. तो करंट बढ़ सकता है, घट सकता है, दैट डिपेंड्स। देखना पड़ेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा आएगा, ये भी बता दे रहा हूं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ नेट करो, गूगल करो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, गूगल करो तो ये दो वैल्यूज निकालो, तो निकाला होगा। निकालो तो बता रहा हूं फिर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर एंड वाटर, हाँ, तो हम लोगों ने ढूंढ के निकाला कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर 1.5 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर 1.33 है। मतलब यहाँ पे कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काम कर रहा है? 1.5। यहाँ पे कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काम कर रहा है वाटर के अंदर में? 1.33। मतलब जहाँ पे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, वहाँ पे बेंडिंग कम हो जाता है। रिफ्रैक्शन ज्यादा है तो बेंडिंग कम हो जाता है, तो वहाँ पे फोकल लेंथ छोटा होगा, यहाँ पे फोकल लेंथ बड़ा होगा। मतलब अंदाजी में मैंने सही ड्रॉ किया था। क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एब्सोल्युटली क्लियर टू यू? तो ये हो गया तुम्हारा एक मतलब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कि फोकल लेंथ फिक्स्ड है कि नहीं है। राइट और रॉन्ग? बस जैसे कि मेरा ये नया चश्मा लग गया, वो चश्मा पहन के रखता हूँ, बोला है भूल जाता हूँ। मतलब पानी में चला जाऊंगा चश्मा लेके अंदर, तो थोड़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में इधर उधर होगा। इज दिस क्लियर टू यू? डॉक्टर ने तो यही सोच के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है कि हवा में ही पहन के रखूंगा, है ना। पानी में पहन के चला जाऊंगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इधर उधर। इज दिस क्लियर टू यू? अच्छा, तो अब चलते हैं स्फेरिकल लेंस। अच्छा, हाँ, एक चीज जो मैं बता रहा था, ये सब मिटा देता हूँ, मैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में मिटा देता हूँ। हाँ, जो चीज मैं बता रहा था, क्योंकि कन्वर्जिंग है तो सच में कन्वर्ज करेगा ना। इन रियल दे विल कन्वर्ज आइदर फ्रॉम दिस साइड और फ्रॉम दिस साइड। इज दिस क्लियर टू यू? तो रियल में फोकस मिलेगा, और इसका प्रूफ मैं हूं। मैं छोटे में चीटी जला दिया था, एक बार नहीं बहुत बार। एक बार जला का मजा आया था, एक बार एक्सीडेंटली जला दिया था, फिर बाद एडजस्ट करके जलाता था। हाँ, मतलब वहाँ पे जो वो मतलब मेरे नाना जी के घर में तुलसी का एक मंदिर है। हाँ, पौधा के ऊपर मंदिर, मतलब नीचे मंदिर किया हुआ है। तो वहाँ पे कुछ प्रसाद वसाद देते थे ना, तो वहाँ पे चीटी बनती थी। मैं सुबह सुबह खेलने निकला था, छोटा था, मतलब घर के आंगन के गेट से बाहर जाना अलाउड नहीं था, तो सोच कितना छोटा था। तो लेंस लेके मैं ये देखता था, वो देखता था। एक दिन एक्सीडेंटली तो चीटी, समर वैकेशन था, समर वैकेशन, घर में था, धूप था, लेंस भी था, बस संजोग बन गए, चीटी का डेथ सर्टिफिकेट लिख दिया। जाना क्यों वैसे?
अरे ऐसे ही खेलते खेलते शायद उतना तो याद नहीं है, ये तो कोई इंसिडेंट नहीं, मे भी खेलते खेलते एक चीटी जल गया, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्यों जला। फिर मैं देख रहा हूँ अरे सन दिख रहा है मेरे को, ये मैं छोटा सा, देखने में तो मैं छोटा था ना, वही लग रहा है ना कि लेंस के उस पार ऐसे देखता हूँ तो मेरे को सूरज छोटा दिखने लगता है, और वो जगह गर्म हो जाता है। पेपर रख के देखा, वो सब बाद में किया, पेपर वेपर बहुत कुछ रख के देखा, मिठाई रोस्ट करने का कोशिश किया, बहुत कुछ किया, ठीक है। तो लेकिन चीटी जला में मजा आता था। चीटी का जो पिछवाड़ा है उसको, जो टूथपिक का जो होता था ना, वैसे नीडल्स होते थे, उससे बांध देता था, वो भाग नहीं पाता था, मरता नहीं था, फिर उसको तरपा कर मार डालता था, बहुत मजा आता था, ठीक है। क्यों, क्या हुआ? हाँ, अब मजा आता था ये, देखो वो तब मेरे आई मीन मजा ऑफ माई टाइम्स, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसको खींचो तो, इसको छोड़ो तो, उसको अच्छा छोड़, हो गया। हाँ, दैट इज मजा ऑफ, छोड़ो तो उसको, खोलना पड़ेगा। अब बात ये है कि अब बात ये है कि हाँ, जो मैं बता रहा था कि यहाँ पे रियल फोकस मिलता है, राइट और रॉन्ग, इसीलिए ना इनके जो पोजीशंस होते हैं वो भी सारे रियल पोजीशंस होते हैं। इसमें सर पोजीशन रियल नहीं है, पोजीशन तो मतलब अलग अलग पोजीशन को डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा। जैसे कि सोचना कॉन्केव मिरर, ये कॉन्केव मिरर हुआ आप तुम्हारा, ठीक है। कॉन्केव मिरर को अगर मैं देखूं तो एक फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, राइट और रॉन्ग, तो तुम कहां पे रख रहा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रख रहा है, इन्फिनिटी में रख रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर में रख रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में रख रहा है, फोकस के ऊपर रख रहा है, फोकस और पोल के बीच में रख रहा है, कहां रख रहा है? 6 पोजीशन से विचार किया जाता है कि कैसा कैसा डिफरेंट डिफरेंट इमेज आएगा ऑब्जेक्ट का, है कि नहीं? ऑन द अदर हैंड तुम अगर कॉन्वेक्स लेंस लोगे, सोचो इस तरफ से लाइट आ रहा है, तुम अगर कॉन्वेक्स लेंस लोगे तो क्या विचार करोगे? फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर तो अंदर है, यहाँ पे जो भी पोजीशन रखोगे सब आगे पीछे है, बस तुम पोजीशन डिफाइन नहीं कर पाओगे, राइट और रॉन्ग। इसीलिए इसका रे डायग्राम अलग अलग पोजीशन में प्रैक्टिस किया जाता है, इसका क्या एक ही है। ठीक उसी तरह इसका भी अलग अलग पोजीशन में ड्रॉ किया जाता है और इसका एक ही है। इज दिस क्लियर टू यू? यही डिफरेंस। इसीलिए हम लोग कॉन्वेक्स लेंस के केस में पढ़ते हैं और कॉन्केव लेंस के 6 डायग्राम्स होते हैं और कॉन्केव लेंस के एक ही डायग्राम होता है। कॉन्केव मिरर में 6 डायग्राम्स होते हैं और कॉन्वेक्स मिरर में एक ही डायग्राम होता है, यही डिफरेंस है। समझा? इज दिस क्लियर टू यू? नहीं क्लियर हुआ? हाँ, अच्छे से समझ में आ गया ना? यही चीज है। ठीक है, इन लोगों को थोड़ा हाफ में देते हैं, बेचारे इंसान आए हैं। So let's move ahead. So you understood, no, that why in case of convex lens, we do a lot of ray diagrams, or why in case of concave mirror we have done a lot of ray diagrams and not in case of convex. I don't why. The converging जब है, मेरा बोलने का मतलब ये है कि जब कॉन्वर्जिंग होता है ना, जैसे कि कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग है और कॉन्केव मिरर कन्वर्जिंग है, ये सर नो, तो हम लोग को फोकस रियल में मिल जाता है, तो फोकस के रिस्पेक्ट में ना बहुत सारा पोजीशंस रियल में मिल जाता है। तो इसी वजह से इनका 6-6 करके रे डायग्राम करना पड़ता है। लेकिन अगर कॉन्केव मिरर को लेंस को देखोगे और कॉन्वेक्स मिरर को देखोगे तो इनके ना डाइवर्जिंग होते हैं दोनों, राइट और रॉन्ग। तो सब वर्चुअल फोकस होता है, वर्चुअल सब कुछ होता है, तो रियल में कोई पोजीशन मिलता नहीं है, तो कोई भी एक पोजीशन ही एक्सप्लेन करने के लिए होता है। इसका भी वही हाल है। तो एक्चुअली डिफरेंस डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग का बात बनाता है। इज दिस क्लियर टू यू? तो चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके हम लोग रे डायग्राम इन कॉन्वेक्स लेंस में पहुंच जाते हैं। देखो क्या करना है,
रे डायग्राम आएगा तो नहीं इस बार, क्योंकि एमसीक्यूज है ना, करने के लिए तो नहीं बोलेगा। तो सबसे पहली बात हम लोगों ने सीबीसी को बोल रहा हूँ, कॉनकेव लेंस का जो रे डायग्राम है वो हम लोगों ने कर लिया है, पेंसिल और ये लेके ग्रुप बना के किए थे, याद है ना? हाँ। कॉन्वेक्स का करते हैं, कॉन्वेक्स सॉरी, अरे क्या ड्रॉ कर रहा हूँ, कॉन्वेक्स लेंस का करते हैं। अच्छा, सबसे पहली बात, अच्छा पिछले वाले वीडियो में तुमको ये मिल जाएगा कि अगर सच में ड्रॉ करना है तो कैसे करना है, मतलब बनाना है प्रिंसिपल एक्सिस और लेंस को ड्रॉ करना है, परफेक्ट लेंस को, तो कॉम्पास से कैसे ड्रॉ करना है, वो 0.5 वगैरह, वो 5.5 वो सब समझाया था ना। तो अब सोचो यहाँ पे 2f2 है, यहाँ पे 2f1 है, थोड़ी सा ब्लैक पेन ले, देखो और सॉरी मैं क्या बता रहा हूँ, यहाँ पे f2 है, यहाँ पे 2f2 है, यहाँ पे f1 है और यहाँ पे 2f1 है, ठीक है ना। अब क्या होगा कि लाइट रे फाइट रे भूल जाओ। सबसे पहली बात तो ये करना कि ऑब्जेक्ट को बाएं तरफ रखना, इमेज को दाएं तरफ रखना, मतलब जस्ट फॉर कन्वीनियंस, ठीक है, जब सोचोगे। लेकिन आज एक बच्चे एमसीक्यू है, उल्टा भी दे सकता है, मैं तो पूरा सिखा देता हूँ। बात ये है कि सबसे पहली बात, तुम इन्फिनिटी में ऑब्जेक्ट को रख सकते हो, इन्फिनिटी में दूर कहीं पे, राइट और कहाँ रख सकते हो, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी में रखोगे तो एक रे ऑफ लाइट आएगा, और मैंने क्या कहा था शॉर्टकट में कैसे करना है, यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन सोचना है, बाद में मिटा देना है, और ये फोकस से पास होके जाएगा, ये सब नो। और सोचो इन्फिनिटी में यहाँ पे ये बोर्ड में देखो तो वीडियो में ये जगह आ रहा है नहीं, हाँ अच्छा मोटा मोटी, तो इन्फिनिटी में ये जगह है, सोचो क्या इससे भी दूर है, सोचो, ठीक है। तो उस ऑब्जेक्ट के सिर से यहाँ आ रहा है, और उस ऑब्जेक्ट के पैर से यहाँ आके ऐसे जा रहा है फोकस से, क्योंकि पैरेलल आएगा तो रूल है कि फोकस से जाएगा। तो अब अगर मैं बोलूं नेचर ऑफ इमेज रियल है, ठीक है, एंड इन्वर्टेड है। सर कैसे समझ में आ रहा है इन्वर्टेड है, क्योंकि वो पैर वाला देखो नीचे की तरफ गया है, और सॉरी माथी वाला मतलब सर वाला नीचे की तरफ गया है और पैर वाला ऊपर की तरफ ही गया है, तो ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट उलट जाएगा, सॉरी इमेज उलट जाएगा। अच्छा साइज, अच्छा सबसे पहले तो ये पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू होगा इन्फिनिटी, राइट और रॉन्ग, है तो रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज ऑफ इमेज हो गया हाईली डिमिनिश्ड, ऐसा कहते हैं, राइट और रॉन्ग, बिल्कुल भी छोटा इतू सा डिमिनिश्ड सा है, राइट और रॉन्ग। और पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा, एट फोकस, या फिर एट F1 लिख सकते हो। इज दिस क्लियर टू यू, हो गया ना, श्योर। अब इसको नेक्स्ट करते हैं। सोचो एक लेंस है, और यहाँ पे F1 F2 है, यहाँ पे 2F2 है, यहाँ पे F1 है, यहाँ पे 2F1 है ना। अब सोचो इन्फिनिटी से आगे आओगे तो होता है बियॉन्ड 2F2, मतलब 2F2 के पीछे रखा गया है। इज दिस क्लियर टू यू, मतलब बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर,
या बियॉन्ड 2f2 है ना? इज दिस क्लियर टू यू? समझ में है? थोड़ा दूर रखता हूं, इस दागे को मिटा देता हूं। हाँ, यहाँ पे रखता हूं, देखने में लग रहा है बियॉन्ड 2f2 है। ठीक है, अब इसको स्ट्रेट आएगा तो फोकस से पास होगा, ये सर नो। और एक लाइन कौन सा ले सकते हैं सर? और एक बाकी से ही लो, ऑप्टिकल सेंटर से पास कराओगे तो सीधा पास होके चला जाएगा, ये सर नो। ऐसे राइट और रॉन्ग? तुम लोग तो स्केल वेल से सीधा कर सकते हो। तो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है ना? एक्चुअली देखो, मैंने तो उतना परफेक्टली ड्रॉ नहीं किया है, इसलिए देखने में नहीं, मतलब क्या होना चाहिए यहाँ पे, अगर बेरम सी है तो तुम्हारा नेचर ऑफ इमेज जो है वो होगा रियल एंड इन्वर्टेड, है कि नहीं? साइज ऑफ द इमेज जो है डिमिनिश्ड होगा, दिखने में नहीं लग रहा है, लेकिन मैं गारंटी बता रहा हूँ, तुम लोग अगर पेंसिल कॉम्पास से करोगे ना, छोटा वाला आएगा, है ना? डिमिनिश्ड आया है ना? देखो बुक में, अपने रिस्पेक्टिव बुक्स में देखो, डिमिनिश्ड आना चाहिए, आया है ना? डिमिनिश्ड आएगा। और पोजीशन क्या होगा? बिटवीन फोकस एंड, मतलब बिटवीन f1 एंड 2f1, मतलब उल्टी साइड में f2 के पीछे रखा था ना, जिस साइड में सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा था उसके उल्टे साइड में फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आएगा, ये पोजीशन होता है। इज दिस क्लियर टू यू? समझ में आ गया? अच्छा, अब इसको मिटाता हूं। अब ठीक है ना? तो अगर फोकस में रखा गया तब क्या होगा? सॉरी, सेंटर ऑफ कर्वेचर में, क्योंकि नेक्स्ट क्या होना चाहिए? पोजीशन, पहला पोजीशन हो गया इन्फिनिटी, ऐसे ऐसे याद रखते हैं। देखो, पोजीशन से याद रखने का तरीका सिखा देता हूं। एक होता है इन्फिनिटी में है, एक होता है इन्फिनिटी में है, एक होता है 2f2 के पीछे है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है, एक होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर में है। अब बताओ नेक्स्ट में, नेक्स्ट का पोजीशन क्या हो सकता है? बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। नेक्स्ट क्या हो सकता है? एट फोकस। नेक्स्ट क्या हो सकता है? बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। बस 6 इमेजेस, है ना? तो हम लोगों ने क्या क्या कर लिया? और बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इंफिनिटी और बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर कर लिया। तो एट फोकस करेंगे अभी, राइट और रॉन्ग? तो एट फोकस में किया तो ये सीधा लाइट आएगा, सोचो फोकस से जाएगा। इज दिस क्लियर टू यू? और दूसरा वाला जो है उसको भी, सॉरी, उसको ऑप्टिकल सेंटर से लोग यहाँ पे मीट कर रहा है। मैं थोड़ा यहाँ पे डायग्राम को मॉडिफाइड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तो पेंसिल कॉम्पास से नहीं कर रहा हूँ ना। तुम लोग अगर पेंसिल कॉम्पास से करोगे तो एग्जैक्ट आएगा। मतलब क्या होता है, ये थोड़ा बड़ा आ गया है ना, लेकिन मैं बताता हूँ। अगर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट फोकस यानी एट f2 है, सॉरी एट सेंटर ऑफ कर्वेचर एट 2f2 है, देन पोजीशन ऑफ द इमेज विल आल्सो बी एट 2f1। मतलब एक तरफ के सेंटर ऑफ कर्वेचर में रखोगे तो दूसरी तरफ सेंटर ऑफ कर्वेचर में आएगा। और नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड। नेचर क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। और पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ नेचर, और क्या होता है? साइज सेम एज ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ? हाँ, तो एक चीज नोटिस कर रहे हो, सबसे पीछे था
अच्छा एक चीज नोटिस कर रहे हो, अगर मैं इस साइड से नहीं करके इस साइड से करता तो सेम ही रिजल्ट मिलता मेरे को। ऑब्जेक्ट अगर इस साइड में रखता, सबसे पहली बात तो ये। सेकंड बात ये है, ये चीज नोटिस कर रहे हो कि जितने तुम लेंस के पास लाए जा रहे हो, इंफिनिटी में था तो छोटा सा इमेज फॉर्म हुआ था, इंफिनिटी से थोड़ा आगे सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे आया तो थोड़ा बड़ा फॉर्म हुआ और लेंस से दूर जा रहा है, राइट और रॉन्ग? और अभी सेंटर ऑफ कर्वेचर में है तो इक्वल साइज का बन चुका है, यानी नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, बड़ा ऑब्जेक्ट से छोटा तो आ ही रहा था, बड़ा ऑब्जेक्ट से बड़ा हो जाएगा और पीछे चला जाएगा। यानी कि तुम अगर यहाँ पे F2 लिखोगे, यहाँ पे 2F2 लिखोगे, बिटवीन रखोगे, यहाँ पे सोचो F1 है, यहाँ पे 2F1 है, तो यहाँ पे होगा तो ऐसे करके जाके फोकस से जाएगा और दूसरा वाला ऑप्टिकल सेंटर से जाके यहाँ पे ऐसे मीट करेगा, ये करेक्ट है ना, और बड़ा होगा और DNN इन्वर्टेड ही होगा। अब ये लिखने का जरूरत नहीं है, पोजीशन ऑफ इमेज यहाँ पे क्या होगा, बिटवीन 2F2 एंड F2, पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा, बियॉन्ड 2F1, नेचर क्या होगा, साइज क्या होगा, साइज क्या होगा, बड़ा होगा, सेम है तो बड़ा होगा। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पोजीशन क्या है, एट एफ। अच्छा शुरू में जब इंफिनिटी में बैठा था तब कहाँ आया था, एफ में आया था ना, तो एफ में बैठा हुआ तो कहाँ आएगा, समझ में आया? याद रखने का जरूरत है कोई, अगर एफ में बैठाओगे, सोचो यहाँ पे लेंस है, एफ में बैठाओगे, ऐसे सीधा जाके फोकस से जाएगा, ऐसा ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा, कभी मीट ही नहीं होगा वो, यानी हम लोग पकड़ लेते हैं कि इंफिनिटी में मीट हो रहा है। वहां पे जैसे हाईली डिमिनिश्ड फॉर्म हुआ था, इन्वर्टेड एंड रियल फॉर्म हुआ था, ठीक है, वहां पे जैसे हाईली डिमिनिश्ड फॉर्म हुआ था, यहाँ पे हाईली एनलार्ज फॉर्म होगा, वो भी रियल और इन्वर्टेड ही होगा क्योंकि नीचे की तरफ लेट जा रहा है। मजा आया, समझ में आया? ये सब लर्न करने की जरूरत है, आराम से कॉन्सेप्ट वाइज याद रख सकते हो अभी, है कि नहीं? और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से माइक्रोस्कोप वगैरह बनता है। कपड़ा लगता है, कौन से वजह से माइक्रोस्कोप बनता है सर, देख लेता हूं। कौन से वजह से माइक्रोस्कोप बनता है, ज्यादा बात नहीं चाहिए, आज 23rd है ना। कौन से वजह से माइक्रोस्कोप बनता है, व्हाट इज द रीजन कि माइक्रोस्कोप बनता है? देखो ये कॉन्वेक्स लेंस है, ऐसे खींचा, ये सोचो 2F1 है, ओ सॉरी F1 है, ये 2F1 है, ये F2 है, ये 2F2 है, ऐसे रखो, ये ऐसे गया, फोकस से पास हुआ, ऑप्टिकल सेंटर में रखो, ऐसे गया, लग रहा है मीट नहीं होगा लेकिन मीट होगा पीछे की तरफ। देख, है ना, वर्चुअल इमेज वो भी इतना बड़ा, इरेक्ट, मतलब इन्वर्टेड नहीं, इरेक्ट। वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होता है, इन्वर्टेड, जिस साइड में फॉर्म है उसी साइड में। इसी की वजह से मैग्नीफाइंग ग्लास से जब देखता है सब कुछ बड़ा बड़ा दिखता है। डू यू गेट माय पॉइंट? और यही रीजन है, अगर इसको ये ऑब्जेक्ट है, इमेज है, तो एक काम का ट्रिक बना, यहाँ पे और एक लेंस रख दे। माइक्रोस्कोप में क्या होता है, एक आई लेंस होता है, एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है ना, हाँ, दो लेंसेज होता है, एक लेंस दूसरा लेंस यहाँ पे रख दे, तो ये अगर इस लेंस का, ये वाला जो इमेज है, ये अगर इस लेंस का फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होगा तो उससे भी बड़ा इमेज फॉर्मेशन होगा, इसीलिए माइक्रोस्कोप में बैक्टीरिया दिखता है। समझा? क्लियर हो गया?
तो हम लोग फर्स्ट पोजीशन क्या पढ़े, अगर एट फोकस रखेंगे कहाँ फॉर्म होगा, एट इंफिनिटी फॉर्म होगा, राइट और रॉन्ग। कैसा होगा नेचर, हाईली, कैसा होगा, हाईली डिमिनिश्ड और रियल एंड इन्वर्टेड। नंबर 2, अगर बियॉन्ड फोकस रखेंगे, सॉरी एट फोकस, उल्टा, एट इंफिनिटी रखेंगे तो एट फोकस फॉर्मेशन होगा ना, अभी उल्टा साइड में, लेंस के उल्टा साइड में, है ना। इज दिस क्लियर टू, हाईली डिमिनिश्ड एंड रियल एंड इन्वर्टेड। बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखेंगे तो लेंस के उल्टा साइड में बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस फॉर्मेशन हो जाएगा, लेंस के उल्टा साइड में, और डिमिनिश्ड रियल एंड इन्वर्टेड। नंबर 3, एट सी रखेंगे तो लेंस के उल्टा साइड में एट सी ही फॉर्म हो जाएगा और सेम साइज का फॉर्म होगा, रियल एंड इन्वर्टेड फॉर्म होगा। नंबर 4, एट सॉरी बिटवीन का क्या होगा, नेक्स्ट इमेज बोलो, बिटवीन सी एंड एफ रखेंगे तो लेंस के इस साइड में होगा तो कहां फॉर्म होगा, बियॉन्ड सी, मतलब इसका उल्टा, राइट और रॉन्ग। बियॉन्ड सी फॉर्म होगा और थोड़ा बड़ा होगा, लिटिल एनलार्ज्ड, रियल इन्वर्टेड। समझ रहे हो क्या, समझ रहे हो, ये सब क्लास में याद हो जाता था पिछले बैच का, तुम लोगों को याद हो रहा है ना, क्लास में याद हो जा रहा है ना, ये लोग क्या कर रहे हैं, वही हो रहा है, समझ में आ रहा है, और समझ में आएगा, देखो मैं करवाऊंगा, बिटवीन सी एंड एफ, बियॉन्ड सी, ठीक है। और देन 1 2 3 4, फिर 5th नंबर में क्या हुआ है, एट फोकस रखोगे तो क्या होगा, एट इंफिनिटी होगा और हाईली एनलार्ज्ड होगा। और नंबर 6, बिटवीन एफ एंड ऑप्टिकल सेंटर रखोगे तो लेंस के इस साइड में ही फॉर्म होगा, वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा, हाईली एनलार्ज फॉर्म होगा, है ना। इज दिस क्लियर टू यू, समझ में आ गया। रफ में ये 6 डायग्राम मेरे को करके दिखाओ जल्दी, इन रफ। और जो लोग वीडियो देखेंगे वो भी रफ में ये 6 डायग्राम वीडियो को इस पोजीशन में पॉज करेंगे और करेंगे, या फिर इस वीडियो के एंड में करेंगे, I mean, यही वीडियो एंड हो रहा है।